Hello everyone, welcome back to the channel. In today's session, we'll be discussing a BPSC AEDU mock test paper. I have already solved this paper beforehand and I found the questions to be really nice, so I thought of sharing it here. If you are also preparing for this examination and are about to sit in this examination in the coming week, I would recommend that please watch till the end and it will definitely help you strengthen your strategy. So, the first question is NPS is a voluntary defined contribution retirement savings scheme to enable the subscribers to make optimum decisions regarding their future through systematic savings. It's quite easy, लेकिन अगर किसी को नहीं भी पता है NPS क्या है, we can come till the answer, we can reach the answer by the word retirement savings scheme. It is obviously National Pension System. The next question is Gomf dance is a famous folk dance of which state? So, Gomf dance is a famous folk dance of Goa. Next question is which of the following is not an essential qualification for the candidature of president? So, हमें पता है कि president के लिए क्या क्या चाहिए होती है eligibility. Qualified for election as a member of the House of the People. Lok Sabha. Yes, this is an essential qualification. We are being asked not an essential qualification. तो qualified for election as a member of the House of People ये तो नहीं होगा. Minimum 35 years of age ये भी एक requirement है, तो ये not में ये भी नहीं आएगा. Citizen of India, obviously that person has to be a citizen of India. Higher education ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है specifically कि इतना education होना चाहिए या something like that. So higher education will be the answer. Then next is in India, the responsibility of conducting the decadal census rests with which ministry? सेंसस कौन सी मिनिस्ट्री कराती है? ये इसलिए आया है ना क्योंकि अभी सेंसस होने मतलब अभी चल रहा है टाइम पूरा सेंसस वाला. सो इट इज़ इन न्यूज़, दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड. इसका आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द थर्ड लेयर ऑफ सॉइल फ्रॉम टॉप. तो हमने सॉइल प्रोफाइल तो पढ़ा ही है कि सॉइल का क्या होता है, कॉम्पोजिशन मतलब प्रोफाइल कैसे होती है, लेयर्स होते हैं जो, तो समथिंग लाइक दिस. तो पहली जो लेयर होती है वो टॉप सॉइल होता है जिसमें ह्यूमस जो होता है वो होता है, इट्स क्वाइट रिच इन ऑर्गेनिक मैटर. द सेकेंड लेयर इज़ सब सॉइल. टॉप सॉइल के नीचे होता है सब सॉइल एंड उसके नीचे होता है जो थर्ड लेयर है वो होता है सबस्ट्रेटम, वेदर्ड पेरेंट रॉक मटेरियल. एंड सबसे नीचे जो होता है वो बेड रॉक होता है, यहाँ पे अनवेदर्ड पेरेंट बेड रॉक, राइट. सो इसका आंसर होगा सबस्ट्रेटम वेदर्ड पेरेंट रॉक मटेरियल. नेक्स्ट इज़ द हेमिस फेस्टिवल इज़ प्रिडोमिनेंटली सेलिब्रेटेड इन विच प्लेस. तो मुझे ऐसे एज सच मैंने हेमिस फेस्टिवल का नहीं सुना था, लेकिन आई नो कि हेमिस नेशनल पार्क जो है वो जम्मू कश्मीर लद्दाख साइड ही है. तो आई मेड अ गेस एंड दिस आंसर वाज राइट कि हेमिस फेस्टिवल कहाँ होता है, तो इट्स सेलिब्रेटेड इन लद्दाख. देन विच 5-year प्लान वॉज रनिंग इन इंडिया ड्यूरिंग द 1971 इंडो पाक वॉर. सो अगर आपको पता है, सबको पता है कि 1951 में ही द फर्स्ट 5-year प्लान वाला जो था आया था. तो अगर हम ईयर्स के हिसाब से भी कैलकुलेट कर लें तो 1971 तक इट वाज ऑब्वियसली द फोर्थ 5-year प्लान. देन मूविंग अहेड टू द 8th क्वेश्चन. The 8th question is in India the first phase of the green revolution was from mid dash up to mid dash. We are being asked the years. तो हमें पता ही है कि 1960s जो थे वो दे वर द प्राइम टाइम ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन. तो इसका आंसर होगा सी 1960-1970. दिस इज द आंसर. फर्स्ट फेज ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन फ्रॉम मिड 1960 टू मिड 1970 बिकॉज 1969 एंड ऑल दीज ईयर्स आर द फेमस वंस. इसके लिए स्पेसिफिकली तो ये मिड 1960 से मिड 1970 तक जाता है. Then which article of the Constitution of India provides for a council of ministers with the prime minister at the head to aid and advise the president in the exercise of the president's functions? तो इसका आंसर होगा बी, आर्टिकल 74. Then Aparna Satishan was honored with the prestigious Bharat Shastra Nritya Praveen National Award for her outstanding performance in which dance form?
This was a question I was not aware of, so I left this question. लेकिन eventually after checking the answer की मुझे पता है कि इसका आंसर अभी it's D, कुचिपुड़ी. Aparna Satishan was honored with the prestigious Bharat Shastra Nritya Praveen National Award for her outstanding performance in Kuchipudi. Right? Then I guess it's a current affairs question. So yeah, that's why it was a little bit tough for me. I did not come across this anywhere. Then what is the diameter and weight of the discus used in a discus thrown in men's category? I was also not aware of this question as well. I left it. पर इसका आंसर है 11th one, it's C. 2 kg in weight and 22 centimeter in diameter. डिस्कस का वेट होता है. Then which of the following is the key objective of microfinance institutions in India? Okay, so we'll analyze all the options one by one. Key objective of microfinance institutions in India. First is providing loans exclusively to women entrepreneurs. Then encouraging large scale industrialization. ये तो पहले गलत हो जाएगा. It is a microfinance institution. Why would it fund a large scale industrialization project or anything of that sort? मतलब इसका फोकस तो थोड़ा लोअर लेवल पे होगा ना, छोटे लेवल पे होगा. मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट्स फॉर शेयर होल्डर्स. अगेन इट इज़ ऑल्सो नॉट which relevant a point. Then promoting financial inclusion and poverty alleviation. This is the right point. Microfinance institution का काम ऐसा ही कुछ होगा ना कि वो financial inclusion को promote करे, right? तो इसका आंसर होगा D. Promoting financial inclusion and poverty alleviation, right? Then moving ahead, which language is more prevalent in Darbhanga All India Radio Center in Bihar? दरभंगा की बात हो रही है and we know मैथिली लैंग्वेजेस उस साइड की लैंग्वेज है, ये ज़्यादा पॉपुलर है, तो यही होगा आंसर. एंड मैंने तो इसी बेसिस पे टिक किया एंड इट वाज राइट. 13th का सी है कि मैथिली लैंग्वेज है दरभंगा ऑल इंडिया रेडियो सेंटर में. देन द डैश हैज़ द सोल अथॉरिटी टू इशू बैंक नोट्स इन इंडिया. It is RBI, Reserve Bank of India, has the sole authority to issue bank notes in India. But again, bank notes of denominations like starting from after 1 rupee, like 5, 10, 20, 30, 20, 50, 100 ऐसे करके ₹1 नोट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही रिलीज़ करती है और उस पर फाइनेंस सेक्रेटरी का साइन होता है. वी ऑल नो दिस थिंग. देन मूविंग अहेड टू 15th क्वेश्चन. Who has been appointed as Vice Chairman of Niti Aayog from 1st May 2022? सुमन बेरी. काफ़ी टाइम से ये न्यूज़ में रहा है. जब 2022 में उनका अपॉइंटमेंट हुआ था उसी टाइम से ये चीज़ है न्यूज़ में. सुमन बेरी. और then as the Mauryan Empire was so large, different parts were ruled differently. The area around what was under the direct control of the emperor? Mauryan Empire की बात हो रही है. एरिया अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ एम्पायर. डायरेक्ट कंट्रोल में तो जो कैपिटल होगा मोस्टली वही एरिया होगा ना. तो अब हमें खुद से सोचना है कि कैपिटल कौन सा एरिया था. आई होप यू ऑल नो कि कैपिटल वाज ऑब्वियसली पाटलिपुत्रा, तो इसका आंसर पाटलिपुत्रा ही होगा. इट वाज अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द एम्परर. देन टू डिफेंड द खलीफास टेम्पोरल पावर्स अ खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म्ड इन बॉम्बे इन. खिलाफत कमेटी कब बनाई गई थी तो मुझे एग्जैक्टली मंथ तो याद नहीं था, लेकिन ईयर के बेसिस पे आई मेड अ गेस एंड लकीली इट वाज राइट. द आंसर इज़ मार्च 1919. इसी टाइम पे एक खिलाफत कमेटी बनाई गई थी बॉम्बे में. देन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इट इज़ वेयर इज़ जयप्रकाश यूनिवर्सिटी इन बिहार लोकेटेड? क्वाइट ईजी, इट्स इन छपरा. Then which of the following duties was not added by the 42nd Amendment of the Indian Constitution? कौन सी उससे नहीं ऐड हुई थी? बाकी नहीं भी पता आपको, बस इतना भी पता है अगर कि अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू वंस चाइल्ड ऑफ वॉट बिटवीन एजेस ऑफ 6 and 14 ईयर्स, ये 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया था. अगर ये भी पता है तो वी कैन कम टू द आंसर दैट इट इज़ द आंसर. और बाकी जो टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्रीज कंपोजिट कल्चर, टू सेव गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर वायलेंस, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेंटी यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, ये सारा
42nd अमेंडमेंट एक्ट से ही आया था। Then moving ahead, we have the next question as Dash is one of the most important festivals of Kamakhya Temple of Guwahati. It is held every year during monsoon mid-June season when the temple is closed for 3 days for tantric rites. So the Kamakhya temple and the rituals are quite famous and जो आसाम का है ये पूरा, so इसका आंसर है अम्बुबाची. I hope I'm pronouncing it right. Then the next question is which of the following statements best defines a microfinance institution? ये again microfinance institution पे ही question है, बस options थोड़े से different कर दिए लेकिन easily आ जाएगा आंसर. MFIs are investment firms that cater exclusively to high net worth individuals. Again wrong. MFIs are non-profit organizations that provide financial services to low-income individuals and small businesses. Yes, this is the answer. आगे भी देख लेते हैं एक बार. MFIs are banks that provide loans only to large corporations. Again, large क्यों, वो micro है. MFIs are government agencies that regulate the microfinance sector. ये भी सुनने में सही लग रहा है लेकिन this one is the more inclusive one, the second option. MFIs are non-profit organizations that provide financial services to low-income individuals and small businesses. तो इसका यही होगा, B होगा. Then what is the purpose of the Saksham app introduced by the Election Commission? तो ये if you have been following news properly regularly तो ये famous है, मतलब ये न्यूज़ में था सक्षम ऐप. तो इसका पर्पस है टू एड्रेस द नीड्स ऑफ वोटर्स अबव 85 years of age and people with disabilities, PWDs. Then in which city is the cricket stadium M Chinnaswamy located? मुझे इसके बारे में नहीं पता था लेकिन I chose to attempt it क्योंकि नाम से मुझे लगा, इसकी जो टर्मिनोलॉजी है उससे लगा कि साउथ इंडिया का ही कोई होगा स्टेडियम, एंड इट इज़ राइटली इन बेंगलुरु. Then, in which of the following parts of the Constitution of India fundamental rights embodied? This is important and it is quite easy. It's in part 3. तो एक बार सारे parts देख लेना Constitution के. Then where is the Archaeological Survey of India conducting excavations to uncover potentially the oldest temple in India? तो ये भी करंट का ही था, मतलब 1-2 साल में न्यूज़ में था ये कि एक जगह मतलब कहाँ पे एक्सकेवेशंस चल रही हैं, वहाँ पे जो मिलेगा टेम्पल वो ओल्डेस्ट टेम्पल होने वाला है इंडिया का. तो ये है नाचने विलेज इन पन्ना डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश. यहाँ पे ओल्डेस्ट टेम्पल इंडिया का मिलने वाला है अगर वो एक्सकेवेशन हो जाए अच्छे से उसके बाद. देन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च द जल जीवन मिशन इन 2019 और इसका टारगेट था कि 2024 तक वाटर जो घर पानी है वो हर घर तक पहुंचाना है, ऐसे करके. On which festival does people of North India worship Goddess Lakshmi and Lord Ganesha together? It's Diwali. Which means of transport is now being used to transfer crude oil, petroleum products and natural gas? Obviously, pipelines. We are done with 28 questions now. Then next question, which waterway connects the Atlantic Ocean with the Pacific Ocean? So Atlantic is here and the Pacific Ocean is here. तो इधर जो वाटरवे कुछ है तो इट्स द पनामा कनाल. जो कि कनेक्ट करता है अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से, पनामा कनाल. Then which dancing legend was the youngest recipient of Padma Bhushan in 1992? इसका है सोनल मानसिंह आंसर. Then according to Article 243 of the Constitution of India, Dash means an institution of self-government constituted under Article 243B for the rural areas. तो Article 243 is it's पंचायत. ग्राम सभा पंचायत में confusion should be avoided. Then Lakshya Sen is a player of which sport? He was quite famous during the Olympics time
मतलब न्यूज़ में था काफ़ी. ही इज़ अ बैडमिंटन प्लेयर. Then where has the Indian Institute of Handloom Technology been set up in Bihar? So I made this question wrong. I got this wrong. And इसका आंसर होगा किशनगंज. किशनगंज में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी इस्टेब्लिश हुई है बिहार में. किशनगंज. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी. अच्छा, नेशनल हैंडलूम डे कब मनाया जाता है? If at all anybody is watching this video, kindly comment. So prior to the country's independence, India was particularly known for its what industries? तो इसका आंसर होगा हैंडीक्राफ्ट. आई वॉज कन्फ्यूज्ड एक्चुअली कि स्पाइसेस होगा कि हैंडीक्राफ्ट होगा, क्योंकि हम लोग स्पाइसेस के लिए भी काफ़ी फेमस थे. लेकिन इट सेज दैट प्रायर टू द कंट्रीज इंडिपेंडेंस, मतलब ये ज़्यादा पहले की बात नहीं हो रही है. तो इसका आंसर होगा हैंडीक्राफ्ट. इंडिया वॉज नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज. Then which of the following organizations conducts the sample surveys for calculating the poverty line in India? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन सैम्पल सर्वे कंडक्ट करती है पावर्टी लाइन को कैलकुलेट करने के लिए? तो इसका आंसर होगा NSSO. डी. Then the Songi Mukhavate dance of which state celebrates the victory of truth over falsehood? The name of the dance is derived from the two lion masks worn by two dancers who represent Narsimha, an aspect of Lord Vishnu. इसका आंसर है सी, महाराष्ट्र. And I also searched a little bit more about it क्योंकि मुझे नहीं आता था. I skipped this question. तो इसमें था कि ये जो डांस है ना, ये स्पेसिफिकली ट्राइबल्स करते हैं. ट्राइबल लोग परफॉर्म करते हैं, वो ट्राइबल्स जो कि गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे रहते हैं. देन नेक्स्ट इज इंडिया अकाउंट्स फॉर हाउ मच ऑफ टोटल वर्ल्ड सरफेस एरिया? तो इसका आंसर है 2.4% ऑफ वर्ल्ड सरफेस एरिया इंडिया ऑक्यूपाई करता है. ऑल्सो द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर एनीबडी हु इज़ वॉचिंग दिस इज़ कि इंडिया कितना वर्ल्ड के पॉपुलेशन में इंडिया का परसेंटेज कितना है? व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ इंडिया इन द एंटायर वर्ल्ड्स पॉपुलेशन? इंडिया की पॉपुलेशन का क्या मतलब है? द नेक्स्ट क्वेश्चन, who spent a lot of time at Harshvardhan's court and left a detailed account of what he saw? It's quite easy. Hiuen Tsang is the answer. He lived during Harshvardhan's time period. He came to India during his reign only, and he wrote quite a detailed account of whatever he saw. Then in which year was Jhansi annexed by Lord Dalhousie under the policy of doctrine of lapse? इसका है A, 1854. And I hope वी नो दैट वॉट डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इज़ कि जब किसी भी रूलर का कोई लीगल आयर नहीं होता था, कोई वारिस नहीं होता था, एंड दैट रूलर पासिस अवे, तो उस केस में वो पूरा जो टेरिटरी है वो एनेक्स कर लेंगे ब्रिटिशर्स. तो झांसी के साथ झांसी में भी यही हुआ था, एंड दिस वाज द मेन कंसर्न वहाँ का पूरा जो चल रहा था. Then, who among the following is best known for creating a fusion style of dance by adapting European theatrical elements? तो this is quite famous. उदय शंकर. उनको मॉडर्न डांस फॉर्म का फादर भी कहा जाता है इंडिया के डांस के, मतलब. तो उन्होंने किया था ये. ही इज़ नोन फॉर क्रिएटिंग अ फ्यूजन स्टाइल ऑफ डांस बाय अडैप्टिंग यूरोपियन थिएट्रिकल एलिमेंट्स. बाहर से इंस्पायर्ड होकर उन्होंने इंडियन फ्यूजन स्टाइल क्रिएट किया था. Uday Shankar. Please remember the name. Then Battle of Panipat was fought in the year 1526 between Babur and, it's quite easy, Ibrahim Lodi. First Battle of Panipat was in 1526 between Babur and Ibrahim Lodi. Then second was between the forces of Akbar and Raja Hemu. And the third was between Ahmad Shah Abdali and the Maratha forces. Next question is, if a panchayat is dissolved, elections are to be held within 6 months. Then under which article of the Indian Constitution Parliament has constituted the Interstate Water Disputes Tribunal? तो आर्टिकल 262 के अंडर है.
इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया, पहला सेंसस कौन सा है? तो 1872 वॉज द फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया अंडर लॉर्ड मायो, और 1881 में वॉज द फर्स्ट सिंक्रोनाइज्ड वन, इट वॉज द फर्स्ट वन विच वॉज सिंक्रोनाइज्ड and it was under whom? अंडर लॉर्ड रिपॉन। जो भी अच्छे काम हुए हैं वो रिपॉन के टाइम में हुए हैं मोस्टली। तो इसमें सिर्फ फर्स्ट सेंसस पूछा जा रहा है, नॉट सिंक्रोनाइज्ड और एनीथिंग डिफरेंटली, जस्ट द फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर होगा 1872 अंडर लॉर्ड मायो। देन which state had the lowest literacy rate according to the 2011 census? Sadly it was us, Bihar. Now क्या रेशियो था, क्या था मतलब डेटा? It was 61.8% was the literacy rate of Bihar as per the 2011 census. Then 46th is question is the soil which originates under tall grass prairie vegetation is called what? तो ये मैंने स्किप किया था क्वेश्चन क्योंकि मुझे टफ़ लगा एंड मुझे अभी भी समझ तो नहीं आया है। आई विल हैव टू रीड समथिंग अबाउट इट आई गेस। इसका आंसर है एज पर द आंसर की शर्नोजेम सॉइल्स। द सॉइल विच ऑरिजिनेट्स अंडर टॉल ग्रास प्रेरी वेजिटेशन इज कॉल्ड शर्नोजेम सॉइल्स। Then Prime Minister Narendra Modi has inaugurated Shivmoga Airport. The airport has been built on 663 acres of land with an investment of rupees 449 crore. In which state the airport has been located? Shivmoga Airport. मैंने सिंपल एक गेस किया, कहीं सुना होगा या मे बी जस्ट गेस। इसका आंसर आए बिलीव इट टू बी कर्नाटक एंड यही आंसर है, इट्स कर्नाटका। Then Prime Minister Narendra Modi inaugurated the Barisu Kannada Dim Dimava Cultural Festival at Talkatora Stadium in where? तो मुझे इसके बारे में तो कोई आइडिया नहीं था, लेकिन तालकटोरा स्टेडियम आई एम वेरी वेल अवेयर कि ये दिल्ली में ही है। एंड वही पूछा ही जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने ये जो फेस्टिवल है ये तालकटोरा स्टेडियम कहाँ पे है जहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया था, मतलब इनाग्रेट किया था, तो न्यू दिल्ली होगा। Then who headed States Committee of the Constituent Assembly? Constituent Assembly का States Committee किसने हेड किया था? तो it was Jawaharlal Nehru who headed the States Committee of the Constituent Assembly. Jawaharlal Nehru. Then which of the following provisions is correct? Part 4 of the Constitution of India deals with directive principles of state policy. Then Part 3 of the Constitution of India deals with fundamental duties. Part 2 of the Constitution deals with fundamental rights. No. Part 4A deals with citizenship. No. पहला ही सही है। Constitution of India Part 4 deals with directive principles of state policy. Then moving ahead, we are done with 50 questions. 50 questions more pending. पर इसमें थोड़े छोटे छोटे easy questions थे, मतलब easy to read. That's why जल्दी हो जा रहा है। Which of the following substances is an acid? Quite directly, hydrochloric acid. Which is the anticoagulant substance in blood? तो ये मेरा गलत हुआ था आंसर, आई गॉट दिस क्वेश्चन रॉन्ग। इसका आंसर है बी, हेपरिन। हेपरिन इज द एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस इन ब्लड, हेपरिन। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू? कौन सा नहीं है कनेक्टिव टिश्यू? तो इट्स स्केलेटल मसल। मैं आई वॉज कन्फ्यूजन विद ब्लड एज वेल, लेकिन ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू का ही टाइप है, इट्स अ यूनिक टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू ही। तो इसका आंसर होगा स्केलेटल मसल बिकॉज इट इज़ नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू। देन 54th क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज इज नॉर्मली फाउंड इन यूरिन? यूरिन में क्या मिलता है नॉर्मली? तो इट्स क्रिएटिनिन विच इज़ फाउंड इन यूरिन। देन और हम लॉजिकली भी सोच सकते हैं, यूरिन इज़ बेसिकली द वेस्ट प्रोडक्ट, राइट? तो ब्लड प्रोटीन्स कैसे जा सकते हैं उसमें? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सब इम्पॉर्टेंट क्रूशियल एलिमेंट्स हैं बॉडी के। तो क्रिएटिनिन ही लग रहा है और यही है आंसर। एन एयर बबल इन वाटर विल एक्ट लाइक अ, ये भी मेरा गलत हुआ था। इसका आंसर है डी, कनकेव लेंस।
Next is when we see an object, the image formed on the retina is real and inverted. Quite easy. Which of the following diseases is caused by a bacterial infection? C. Tuberculosis. Tuberculosis is caused by a bacterial infection. बाकी सब किससे होते हैं? इन्फ्लुएंजा इज कॉज्ड बाय वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस. डायबिटीज़, मलेरिया तो मच्छर से होता है. डायबिटीज़, हार्मोनल, जो इंसुलिन सेंसिटिविटी वगैरह, जो जो इंसुलिन से रिलेटेड प्रॉब्लम है बॉडी के अंदर, तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन इज ट्यूबरक्यूलोसिस. 57 का सी है. देन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज इज कॉज्ड बाय वायरस? अगेन अस्थमा, ल्यूकीमिया, ऑस्टियोपोरोसिस. Hepatitis is the answer. It is caused by a virus. Then, yeah, which of the following are longest cells of human body? It is a fact. मतलब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट एनसीईआरटी वगैरह में दिया हुआ है. लॉन्गेस्ट सेल्स कौन से हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर लॉन्गेस्ट सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी? इट्स नर्व सेल्स. नर्व सेल्स आर द लॉन्गेस्ट. Then, which among the following does not have a cell wall? Mycoplasma. I remember reading it somewhere. Mycoplasma does not have a cell wall. Which vitamin is essential for maintaining healthy eyesight? The very famous, काफ़ी famous है ये, vitamin A. Which vitamin is essential for collagen synthesis and wound healing? Collagen synthesis, wound healing. Wound healing का मतलब हुआ something related to platelets. Not really platelets, या platelets, आई एम नॉट श्योर. क्लॉटिंग का मतलब बेसिकली बात हो रही है. तो इट्स विटामिन के. इट इज़ एसेंशियल फॉर कोलाजन सिंथेसिस एंड वुंड हीलिंग. विटामिन के. What is the pH of a neutral solution? Very, very easy. It's 7, always 7. Then, which of the following is not a property of an acid? It turns blue litmus paper red. तो ये तो है प्रॉपर्टी. नॉट प्रॉपर्टी पूछा गया है. It turns blue litmus paper red. It is a property. It has a sour taste. It is a property. It has a pH greater than 7. This is not a property of acids. So this is the right answer. Because it is a property of base. ये acid का 7 से कम होता है. Which acid is present in vinegar? Very simple. It's acetic acid. CH3COOH. Also called ethanoic acid, I guess. यही है. Then blood group AB has no antigen, no antibody. इसका आंसर होगा द ब्लड ग्रुप AB has no antibody. नो एंटीजन जो है वो O का है. एंटीबॉडी होता है ब्लड ग्रुप AB का, मतलब उसके पास नहीं होता है. Then which disease is caused by a deficiency of vitamin C? Very easy. It's scurvy. Rickets विटामिन D की deficiency से होता है. Lymph carries digested and absorbed fat from where? कहाँ से लेके जाता है? It's intestine. क्योंकि digested and absorbed कहा जा रहा है ना, मैक्सिमम काम तो यहीं पे हो रहा है ना. Then alveoli are balloon-like structures within the lungs. Who discovered the electron as a constituent of the atom? किसने डिस्कवर किया था इलेक्ट्रॉन एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द एटम? इट्स J.J. Thomson. Then which subatomic particle was discovered due to the discrepancy in the expected atomic masses? So it's neutron. This was the subatomic particle which was discovered due to discrepancy in the expected atomic masses. Neutron. Please remember this. Then which law of physics relates kinetic energy to mass and velocity? ये वाला क्वेश्चन आई स्किप्ड. तो इसका आंसर न्यूटन सेकेंड लॉ है. देन व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी? Acceleration is the rate of change of velocity. Velocity is the rate of change of acceleration. Acceleration and velocity are unrelated. Acceleration is the speed of an object. Its acceleration is the rate of change of velocity.
Then who is known as the father of the modern periodic table? It's Dmitry Mendeleev. बिकॉज वही नाम मेरा सुना हुआ था तो मैंने वही टिक कर दिया एंड सही हो गया. एग्ज़ाम में भी ऐसे ही हो जाए. विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द फैमिली ऑफ अल्कली मेटल्स? तो इट्स बी बेरिलियम. इट्स नॉट अमंगस्ट द अल्कली. हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन. आई एम रिमेंबरिंग ऑल दिस डेटा. काफ़ी टाइम हो गया पढ़े हुए स्टिल. एंड दिस वाज द अल्कली मेटल लिस्ट, राइट? ऐसे करके. तो बेरिलियम इज समवेयर हेयर. यहाँ पे है, यहाँ नहीं है. तो फिर ऐसे ही इसका आंसर बेरिलियम ही होगा. देन बिहार पंचायती राज एक्ट केम इन विच ईयर? दिस इज़ वेरी वेरी इजी. मतलब बिहार का तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये एक फैक्ट है कि बिहार पंचायती राज एक्ट 2006 में आया था. और ये एक्ट जो है ये 15 अगस्त के दिन आया था, मतलब 2006 में. और इसका एम यही था कि पावर को डिसेंट्रलाइज करेंगे और ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी, मतलब मोटिव था मेन कि पंचायत सिस्टम को प्रमोट करके स्ट्रेंथन करके हम ग्रास रूट डेमोक्रेसी करेंगे प्रमोट. और इसके तहत 3 टियर पंचायती राज सिस्टम आया था, विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे. और इन सबको पावर्स और फंक्शंस दिए गए थे रूरल डेवलपमेंट, सोशल जस्टिस के लिए, लोकल गवर्नेंस के लिए, इन सब चीज़ों के लिए. तो 2006 में आया था बिहार पंचायती राज एक्ट. देन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वाज द थर्ड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हेल्ड? आई स्किप्ड दिस क्वेश्चन. इसका आंसर है उत्तर प्रदेश. मुझे नहीं पता था. थर्ड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स यूपी. देन वेयर वाज द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन फाउंडेड इन 1928? तो इसका आंसर होगा दिल्ली. मेरा ये गलत हो गया था क्वेश्चन. मैंने कानपुर किया था इसका आंसर, पर इसका आंसर दिल्ली है, कानपुर नहीं है. देन इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज शिफ्टिंग कल्टिवेशन नोन एज ब्रिंगा? तो इट्स ओडिशा. ओडिशा में इसको ब्रिंगा कहा जाता है. देन व्हाट डज द एक्रोनिम ATM स्टैंड फॉर? ऑटोमेटेड टेलर मशीन. देन हु हैड फाउंडेड द फर्स्ट वुमेन्स यूनिवर्सिटी इन इंडिया? तो इसका आंसर मुझे याद है, मतलब कहीं पढ़ा होगा PYQ वगैरह में. धोंदो केशव कार्वे. Which process is sometimes called reduction division because it reduces the number of chromosomes to half the normal number to form sperm and eggs? इसका आंसर as per the answer key is meiosis. Then who had convened the second Buddhist council at Vaishali? It's Kalashok. अशोका ने थर्ड वाली की थी, अजातशत्रु ने फर्स्ट काउंसिल की थी, सेकंड की थी कालाशोक ने. फर्स्ट अजातशत्रु ने राजगीर में, कालाशोक ने सेकंड वैशाली में, थर्ड अशोक ने पाटलिपुत्र में, एंड फोर्थ वन वाज बाय कनिष्क. ही इज़ द वन. एंड कनिष्क ने की थी कश्मीर में, कुंडलवन. द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल. देन इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर mahogany, रोजवुड एंड चिंकोना ट्रीज फाउंड इन इंडिया? कौन से फॉरेस्ट में मिलते हैं? इट्स दे आर फाउंड इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. ये mahogany, रोजवुड ये सब ट्रॉपिकल ही है ट्रीज. देन लेबांग बुमानी डांस इज द हार्वेस्ट डांस ऑफ? ये भी मैंने स्किप किया था, नहीं पता था. इसका आंसर होगा त्रिपुरा. लेबांग बुमानी डांस हार्वेस्ट डांस है त्रिपुरा का. लेबांग बुमानी डांस, लेबांग बुमानी. Then why is it important to distinguish between final and intermediate goods and services in national income accounting? Okay. First, it helps track changes in consumer preferences and market demand. It helps in more accurate measurement of economic growth and productivity. It provides insights into the distribution of income among different sectors, and it helps in determining the overall quality of goods and services produced. ज़्यादा सही तो मुझे यही लग रहा था, यही है सही. Why is it important to distinguish between final and intermediate goods services in national income accounting? So it helps in more accurate measurement of economic growth and productivity. इसीलिए. Then which of the following is not a directive principle of state policy? Separation of judiciary from executive. This is a directive principle of state policy under Article 50. तो ये तो not पूछ रहा है. Then
reside in any part of India, यही है, not it's a fundamental right, no. आर्टिकल 19 यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये भी एक DPSP है 44 में. प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, ये भी एक DPSP है. रिजाइड इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया इज नॉट अ DPSP, इट्स अ फंडामेंटल राइट. सो यही होगा आंसर. इन विच स्टेट इज द सांची स्तूपा सिचुएटेड? वेरी वेरी फेमस, मध्य प्रदेश. One more famous stupa of Madhya Pradesh is Bharhut Stupa. Then who is the nominal executive authority of India? Nominal लिखा हुआ है तो it's simply सीधा without any सोचे समझे सीधा प्रेसिडेंट टिक कर दो, यही होता है. प्रेसिडेंट ही नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है हमारे कंट्री के. Then who among the following is the author of the book Unfinished, a memoir? तो इट्स प्रियंका चोपड़ा. उन्हीं की ऑटोबायोग्राफी है ये, उन्होंने लिखी है. अनफिनिश्ड मेमोयर कुछ साल पहले लिखी थी, न्यूज़ में थी, कभी सोशल मीडिया वगैरह पे देखी थी मैंने. देन द साउथ चाइना सी इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ओशंस? इट्स पैसिफिक ओशन. एंड देन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया इज धिवेही है. आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दिस लैंग्वेज. तो ये जो भी फैक्ट पता चल रहा है ना इस टेस्ट से, आई होप यू रिमेंबर इट, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल होंगे. द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया इज धिवेही. तो इसका आंसर है मालदीव्स. मालदीव्स की ऑफिशियल लैंग्वेज है धिवेही. और इसी लैंग्वेज को ना मालदीवियन भी कहा जाता है. और बाकी अगर देखें श्रीलंका की, तो श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज है सिन्हाला एंड तमिल. सिन्हालीज लैंग्वेज जो है वो ही वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है. चाइना की वी ऑल नो मैंडरिन चाइनीज़ जो है, मैंडरिन चाइनीज़ यही ऑफिशियल लैंग्वेज है. भूटान की ऑफिशियल लैंग्वेज है जोंगखा. जोंगखा. बी साइलेंट. जोंगखा. It is the official language of Bhutan. Then under which scheme of Airport Authority of India did the Jammu and Kashmir Lieutenant Governor inaugurate Umeed Marketplace at Srinagar International Airport for supporting local art and artisans of self-help groups of J&K Rural Livelihood Mission? तो इसका आंसर है अफसर स्कीम. अफसर. Then who was the Iranian ruler who attacked the city of Delhi and took away an immense amount of wealth in 1739? तो इस ईयर से मुझे याद था नादिर शाह. और नादिर शाह और किस लिए फेमस है? तो नादिर शाह ही कोहिनूर लेके he invaded India and took the legendary Kohinoor diamond away along with him. And he ruined the entire, everything. पीकॉक थ्रोन भी अपने साथ ही ले गया एंड कोहिनूर भी ले गया. नादिर शाह. Then Pandit Bhimsen Joshi belonged to which घराना? I was not aware, I had no idea about it, तो मैंने स्किप किया. और even though like ये क्वेश्चन आया है बट आई एम नॉट रियली श्योर कि इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं कि नहीं, बिकॉज नो बडी नोज. इफ़ यू डू नॉट नो, नो बडी एल्स इज ऑल्सो नॉट, नो बडी एल्स इज गोइंग टू नो इट एज वेल, राइट. तो इतना रिस्क इसमें लेने की ज़रूरत नहीं है. इट्स बेटर टू स्किप सच क्वेश्चंस. दैट्स किराना. पंडित भीमसेन जोशी बिलोंग टू द किराना घराना. इट्स अ घराना ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक, म्यूज़िक से रिलेटेड है. देन महारी डांस एंड गोतीपुआ डांस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? तो इट्स ओडिशा. महारी डांस एंड गोतीपुआ डांस बिलोंग टू ओडिशा. आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर ऑफ डांसर एंड द रिलेटेड डांस फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग. ये भी मुझे नहीं आइडिया था कि कौन सा इसमें से रॉन्ग पेयर है. और इसका आंसर है बी, कुमकुम धार कुचिपुड़ी. ये मैंने आंसर की से देखा है कि कुमकुम धार वाज शी इज़ नॉट रिलेटेड टू दिस कुचिपुड़ी. शी इज़ अ मणिपुरी डांसर रिलेटेड टू मणिपुरी डांस. देन विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिशियंस इज पॉपुलरली नोन एज पंचम दा? तो ये आर डी बर्मन. थैंक्स टू माई बॉलीवुड नॉलेज. इट्स आर डी बर्मन. पंचम दा. He is popularly known as Pancham Da. Then the Mukteshwar Dance Festival is held from 14th to 16th January at the Mukteshwar Temple in the state of
It's again Odisha. Why are so many questions of Odisha in it? Also, Odisha was again in news. Odisha was in news because it topped Niti Aayog's Fiscal Health Index 2026, and it turned out to be the best performing state in India for financial management. तो Odisha is in news these days. It's important. तो जो भी ये डेटा दिख रहा है इसको याद कर लो, फैक्ट को रिमेंबर इट. Final question. The 100th question. Select from among the given options the autobiography of Milkha Singh. तो इसका आंसर है द रेस ऑफ माई लाइफ, बी. एंड ये मेरा बस गेस वर्क था, मेरा मतलब रेस ऑफ माई लाइफ मैंने गेस किया एंड ये सही था, क्योंकि मिल्खा सिंह उनको फ्लाइंग सिख के नाम से कहा जाता है. वो काफ़ी फेमस थे रनिंग के लिए अपने, तो उस वे से मैंने सोचा कि यही हो सकता है. और ऑल्सो द शॉर्ट एट हिस्ट्री जो है ये अभिनव बिंद्रा की बुक है. अभिनव बिंद्रा द वेरी फेमस शूटर, द गोल्ड मेडलिस्ट. तो इसके साथ हो गए हमारे 100 क्वेश्चंस कंप्लीट, एंड आई होप कि दिस वीडियो हेल्प्ड यू ऑल, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशंस. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड मुझे जो भी चीज़ इम्पोर्टेंट लगेगी I will share it. Thank you.